Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor by Newton School and this is just another video of our playlist interview questions. Okay, so इसमें हम एक another interview question देखेंगे and that is related from a data structure stack with a data structure stack. ठीक है, तो stack का एक question है और काफ़ी अच्छा question है and trick based question है. ठीक है, और मज़ा आएगा पढ़ने में. But before starting this video and before telling you the problem statement and what is the approach of the question, let's just see what is Newton School in brief. So basically Newton School is an e-learning platform, as we all know, and they have two programs especially designed for you. Their first program is pay after placement program, under which if you want to get placed in any of these companies, you can join their full stack development course. Okay, so firstly they will train you, and after that not only this, they will also get you placed in these different companies for minimum of 5 lakh CTC. Okay, and most amazing thing about this program is that you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies. Okay, second program they have for you is their Launchpad initiative. So if you want to start learning for free, you can just go to Newton School Launchpad initiative and check their amazing courses. Okay, there are courses for you absolutely for free. You will also get certificates after completion of any of the course. Okay, you can also use Newton School ID for coding purpose, and you can also give live coding contest of Newton School where you can win gift vouchers, cash prizes, and like referrals to big product based companies, everything. Okay, so just come to Newton School website, check there both all the programs and get the most out of it. At the end, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go and subscribe this YouTube channel where we are uploading regular videos to provide you free content over dynamic programming, over different programming languages, over companies placements, like different companies placements, and we have playlists for interview questions also. Okay, where I have already uploaded almost 10 to 15 questions. Okay, and I am uploading regular videos and interview questions in this, so you can just mark this playlist also, bookmark this playlist. Now let's just begin with our today's video, and I'm going to tell you the problem statement now. Our question is next greater element. Okay, तो मे बी यू हैव हर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन, तुमने मे बी हो सकता है पढ़ रखा हो क्वेश्चन. ठीक है, एंड मैं इसकी बेटर अप्रोच बताने वाला हूँ, और या फिर यू कैन से मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच बताने वाला हूँ फॉर दिस क्वेश्चन, जो तुम इंटरव्यूज में जाके बताओगे, एंड इंटरव्यूअर विल बी सेटिस्फाइड बाय योर आंसर. ओके, व्हेन यू विल गिव दैट आंसर. ओके, तो स्टैक का क्वेश्चन है एंड नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इसका नाम है. नाउ लेट्स जस्ट सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट. The next greater element of some element x in an array is the first greater element that is to the right of x in the same array. ठीक है, you are given two distinct zero index arrays num1 and num2 where num1 is a subset of num2. Fine. For each zero I say num1, find the index j such that num I is and determine the next greater element of num2 j in num2. If there is no greater element, then the answer for this query is -1. So basically है क्या, तुम्हारे पास दो arrays हैं. ठीक है, ये num2 है मान लो और ये num1 है. ओके, अब num1 जो है num2 का सबसेट है फॉर नाउ. अभी तुम num1 से मतलब नहीं रखो. बेसिकली तुम्हें करना क्या है, num2 के सारे एलिमेंट्स के लिए उनका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है. एंड व्हाट इज नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, आई होप तुम्हें इस डेफिनेशन से पता चल गया हो. किसी भी एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वो होगा जो उसके जस्ट राइट में उससे बड़ी वैल्यू हो, वो उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट. फाइन, आई होप समझ में आ गया. तो अगर मैं n2 के सारे एलिमेंट्स के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकाल लूं, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली गो इन n1 और जो जो इसकी वैल्यू होंगी उन वैल्यू का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मैं जहां पे भी स्टोर कर रहा हूँ वहां से आउटपुट दे दूंगा. ओके, सो माय फर्स्ट टास्क फॉर दिस क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ दिस कंप्लीट एरे num2. उसके बाद ये जो टास्क है ये ईजी है. ठीक है, मैं एग्जैक्टली क्या कर सकता हूँ, मैं इसके सारे एलिमेंट्स एक हैश मैप में डाल लूंगा. ठीक है, और उन हैश मैप की वैल्यू क्या ले लूंगा, सिंपली उनके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट्स की वैल्यू, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की वैल्यू. ठीक है, और फिर इस एरे में इटरेट करूंगा और यहां से वैल्यू वो प्रिंट कराता जाऊंगा. ठीक है, सिंपल सा टास्क है. बट बिफोर दैट आई हैव टू कैलकुलेट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ दिस num2 एरे, एंड हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट, लेट्स जस्ट सी दैट थिंग. ओके, एक अगर एग्जाम्पल देखना है तो ये मेरे पास है, ये दो एरेज है num1 एंड num2. अगर मैं इसके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट्स की बात करूं
तो 1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है 3, 3 का क्या है 4, 4 का कुछ भी नहीं है, 2 का कुछ भी नहीं है, ठीक है। 4 का क्या था कुछ भी नहीं, दैट्स वाई -1। 1 का क्या था 3, दैट्स वाई 3। 2 का क्या था कुछ भी नहीं, तो -1। ओके, सिंपल सी चीज है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो बेसिकली हमने क्या फर्स्टली आई हैव टू फाइंड आउट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ दिस एरे, एंड आफ्टर दैट मैं सिंपली एक हैश मैप से ये वैल्यूज निकाल लूंगा, ठीक है। तो अब ये कैसे करना है ये देखते हैं। आई हैव, यू विल सिंपली से कि मेरे पास एक n² की अप्रोच है। कैसे, मुझे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ 1 निकालना है। मैं 1 के लिए क्या करूंगा, पूरी एरे में इटरेट करूंगा, मैं देखूंगा जैसे ही मुझे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मिल गया, आई विल सिंपली से 1 के लिए 3 स्टोर कर लो। 3 के लिए पूरी एरे में राइट में उसके इटरेट किया, आई विल सिंपली फाइंड आउट दैट 4 इज नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ 3, आई विल सिंपली स्टोर इट इन द एरे, ठीक है। तो ये सिंपल सी अप्रोच है, और इस अप्रोच में तुम्हें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी n²। ओके, बट इंटरव्यूअर विल आस्क यू फॉर O of n अप्रोच, ठीक है। इस क्वेश्चन की हाईलाइट भी यही है दैट whether you can solve this question in O of n approach or not, or you can say linear complexity or not। ओके, तो तुम्हें ये क्वेश्चन लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है, तो कैसे करोगे। अब मैं वो अप्रोच बताने वाला हूँ, एंड दैट अप्रोच यूजेज स्टाक, ठीक है। तो बेसिकली मैं पहले तुम्हें अप्रोच बताऊंगा, उसके बाद आई विल टेल यू कि व्हाई दिस अप्रोच इज वर्किंग, सिंपली व्हाई दिस अप्रोच इज वर्किंग, ओके। एंड उसके बाद इफ यू स्टिल आफ्टर दैट ऑल्सो इफ यू हैव डाउट, any of the doubt you can just ask me in comment section, ठीक है। now let's just discuss the approach। अब मेरे पास ये कंप्लीट एरे 1 3 4 2, मैं कोई भी एरे ले लेता हूं 1 3 4 2 5 6, ठीक है। मेरे पास ये एरे है। अब मैं बोलूंगा यहां पे मेरे पास एक स्टैक है, तुम पहले अप्रोच सुनो, ठीक है। अप्रोच के बाद ये अप्रोच क्यों वर्क कर रही है मैं वो बता दूंगा तुम्हें। मैं सिंपली क्या करूंगा, आई विल ट्रैवर्स फ्रॉम द बैक साइड, ठीक है। मैं इस एरे में बैक साइड से ट्रैवर्स करूंगा। व्हाई, सिंपली सपोज इफ आई एम ट्रैवर्सिंग फ्रॉम द बैक साइड, ठीक है। तो अगर मैं फ्रंट से, सपोज मैंने बोला कि मैं पहले फ्रंट से ट्रैवर्स कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे अगर इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बताना है तो ऑब्वियसली मुझे इसके राइट के एलिमेंट्स ऑलरेडी एक्सेस्ड होने चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं इन एलिमेंट्स का काउंट चाहिए, है ना। कॉमन सेंस है। अगर मुझे इसके राइट से ये पता करना है कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है, तो मुझे इनका एक्सेस होना चाहिए ऑलरेडी, ओके। मेरे पास इनका कुछ ना कुछ वजूद होना चाहिए, दैट्स वाई मैं पहले इसके राइट के सारे एलिमेंट्स एक्सेस करूंगा। अगर 2 है, मुझे 2 का राइट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बताना है, तो आई मस्ट हैव ऑलरेडी एक्सेस्ड इट्स राइट मोस्ट एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। दैट्स वाई आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स राइट, ठीक है, फाइन। मैं सिंपली क्या करूंगा, राइट से एक्सेस किया मैंने, फर्स्ट एलिमेंट जब मुझे मिलेगा आई विल सिंपली से दैट फॉर 6 देयर इज नो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, ओके। एंड दिस इज माय स्टैक, एंड राइट नाउ दिस स्टैक इज एम्प्टी, आई हैव नो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। आई विल सिंपली, आई हैव अ एरे, ओके, एंड इन दिस एरे आई विल सिंपली स्टोर -1 at this index, okay, fine। for 6 I have no next greater element। now I will come to 5, and सिंपली जब भी मेरे पास ये जो 6 होगा, मैं इसको सिंपली क्या करूंगा, इस स्टैक में भी डाल दूंगा, ठीक है। फॉर नाउ अभी तुम अप्रोच सुनो, ठीक है। आई विल सिंपली टेल यू कि ये अप्रोच वर्क कैसे कर रही है। 6 को मैं स्टैक में डाल दूंगा। अब मैं 5 पे आया, ठीक है। फॉर 5 आई विल सिंपली चेक माई स्टैक, ठीक है। स्टैक में मेरे है क्या, उससे राइट के एलिमेंट्स, ठीक है। उसके राइट के एलिमेंट्स मैंने स्टैक में डाल रखे हैं। अब वो बड़े हैं कि छोटे, इस पे अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे, ठीक है। 5 के राइट के एलिमेंट्स मेरे पास स्टैक में है। मैं जाऊंगा, मैं सिंपली चेक करूंगा आई हैव अ 6 इन स्टैक, ठीक है। और वो उसका राइट मोस्ट एलिमेंट ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे जैसे मैं टॉप में एलिमेंट्स डालता जाऊंगा, तो ऑब्वियसली जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा वो उसके जस्ट राइट वाला एलिमेंट होगा, और जो उससे नीचे होगा वो उसके बाद वाला, ठीक है। तो जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा वो जस्ट राइट वाला एलिमेंट ही होगा, ऑब्वियस सी चीज है, ठीक है, फाइन। तो आई विल सिंपली चेक फॉर 5, मैं टॉप से चेक करना शुरू किया, एंड मुझे जो भी टॉप का एलिमेंट मिला, फर्स्ट सपोज 6 मिला, आई विल सिंपली चेक कि 5 से क्या बड़ा है क्या 6, है ना। 5 इज लेस देन 6, आई विल सिंपली से
कि सिंस जो 6 है इज जस्ट राइट वन एलिमेंट, जस्ट राइट का एलिमेंट है एंड इट इज ग्रेटर देन 5, आई विल सिंपली से कि मेरे पास 5 का क्या आ गया, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट आ गया, आई हैव अ नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ 5 एंड दैट इज 6, ठीक है फाइन। अब 6 करने के बाद मैं क्या 5 को इस स्टैक में डालूंगा, हाँ मैं डाल दूंगा, ठीक है मैंने 5 को भी अभी फॉर नाउ इस स्टैक में डाल दिया। आई विल कम टू 2 में आया मैं एंड आई सिंपली चेकड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए स्टैक, क्योंकि मुझे राइट मोस्ट एलिमेंट से चेक करना है, मैंने टॉप ऑफ ए स्टैक से चेक किया वेदर 5 इज ग्रेटर देन 2, यस 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड सिंस 5 जस्ट उसके राइट का एलिमेंट है, मैं बोलूंगा कि हाँ मुझे 5 मिल गया एंड क्योंकि 2 वॉज लेस देन 5, ठीक है फाइन एंड आई सिंपली स्टोर्ड 5 एज नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ 2, यहां पे -1 था, ठीक है फाइन। नाउ आई विल चेक फॉर 4, 2 को क्या मैंने इस स्टैक में डाला, 2 को भी स्टैक में डाल देते हैं क्योंकि अभी तक मैं सारे एलिमेंट्स स्टैक में डाल रहा था, ठीक है। अब मैं यहां पे आया 4 में, आई विल सिंपली से कि 4 के लिए अब मुझे स्टैक राइट मोस्ट एलिमेंट्स चेक करने हैं, ठीक है मैंने चेक किया राइट मोस्ट एलिमेंट 2 जो है दैट इज 4 इज ग्रेटर देन 2, सो 4 के लिए 2 नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं हो सकता। व्हाट आई विल सिंपली डू, आई विल रिमूव 2 फ्रॉम हेयर, ठीक है मैंने 2 को यहां से हटा के यहां पे लिख दिया दैट आई हैव ऑलरेडी रिमूव्ड 2, ठीक है 2 को यहां से हटा दूं। फिर मैं चेक करूंगा 5 के लिए, यस 5 इज ग्रेटर देन 4, आई विल सिंपली से कि 4 का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो 5 है, ओके अब मैंने 2 को यहां से रिमूव किया फॉर नाउ बिकॉज इट वॉज लेस देन 4, ठीक है फाइन। अब मैं 3 पे आया, ठीक 3 के लिए सिंपली चेक करूंगा फ्रॉम द, और 4 को मैंने अभी पुश नहीं किया था स्टैक में, ठीक है 4 को मैंने क्या किया पुश कर दिया स्टैक में। अब मैं 3 पे आया, 3 पे जस्ट इसके राइट वाले एलिमेंट्स मुझे चेक करने हैं, है ना जस्ट इसके राइट से। अब मैं सिंपली क्या करूंगा टॉप ऑफ द स्टैक से चेक करना शुरू करूंगा, जैसे ही मुझे एक ग्रेटर एलिमेंट मिला दैट इज 3 इज लेस देन 4, आई विल सिंपली से दैट 4 इज नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ 3, बिकॉज क्योंकि टॉप मोस्ट एलिमेंट से जब मैं स्टैक एक्सेस करूंगा तो मुझे उसके जस्ट राइट वाले एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है फाइन। अब यू विल से व्हाई जो एलिमेंट्स हमने रिमूव कर दिए हैं वो एलिमेंट्स क्या इस एलिमेंट के लिए मैटर नहीं करेंगे, हियर दिस कैन बी योर वन डाउट। अब व्हाई दिस एलिमेंट विल नॉट मैटर फॉर 3, आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है सपोज 3, 4, 2 और 5 की बात चल रही है, ठीक है इनिशियली स्टैक में मेरे पास 5 था, ये 2 था, ठीक है मेरे पास 3 था और 4 था। जब मैंने 4 के लिए 2 को हटाया, ठीक है तो मैंने सिर्फ इस स्टैक से वो वाले एलिमेंट्स हटाए, दोज एलिमेंट्स वर लेस देन 4, मैंने वो वाले एलिमेंट्स हटाए जो 4 से लेस थे, ठीक है तो अब 4 के जो लेफ्ट में एलिमेंट्स थे जिनके लिए मैं 4 के बाद नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट देखने वाला हूं, ऑब्वियसली अगर ये एलिमेंट्स जो हैं वो 4 से छोटे होंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये एलिमेंट्स 4 से छोटे होंगे तो जो जस्ट राइट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा वो उनके लिए 4 ही हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली आई डोंट नीड दीज एलिमेंट्स, ठीक है मुझे एलिमेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिकॉज 4 विल बी द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फॉर ऑल द एलिमेंट्स इन द लेफ्ट साइड ऑफ 4 एंड जो 4 से छोटे हैं, ठीक है एंड उन एलिमेंट्स के लिए जो 4 से बड़े हैं और उसके लेफ्ट में हैं, वो एलिमेंट्स जो 4 से बड़े हैं और उसके लेफ्ट में हैं, ठीक है तो जब उनके लिए 4 नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली जो 4 से छोटे एलिमेंट्स यहां पे जो हमने हटा दिए हैं वो भी नेक्स्ट ग्रेटर नहीं हो सकते, ठीक है तो इधर किसी भी एलिमेंट के लिए 4 नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा। अब ध्यान से सुनना, फिर से समझा रहा हूं, ठीक है जो 4 और 5 के बीच के एलिमेंट्स जो मैंने हटा दिए हैं वो मैटर क्यों नहीं कर रहे, व्हाई दीज एलिमेंट्स आर नॉट मैटर फॉर अस एनीमोर, बिकॉज जो इसके लेफ्ट में एलिमेंट है इधर वो 4 से छोटे होंगे या बड़े होंगे, अगर वो 4 से छोटे हैं तो ऑब्वियसली 4 विल बी उनका जस्ट राइट मोस्ट नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा, और अगर 4 से बड़े हैं तो ऑब्वियसली 4 विल ऑल्सो नॉट मैटर फॉर देम, एंड 4 से छोटे एलिमेंट्स तो ऑब्वियसली मैटर नहीं करेंगे, ओके एंड सिंपली 5 उनका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई दिस वाज द थिंग, जो एलिमेंट्स मैंने यहां से हटा दिए हैं वो मैटर नहीं करेंगे,
ठीक है, फाइन। तो मैंने यहां से वो एलिमेंट्स हटा दिए सिंपली। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, 3 पे आके चेक करूंगा। 3 पे जैसे ही उसका टॉप मोस्ट एलिमेंट मैंने देखा है स्टैक का, दैट इज 4। सिंपली क्या होगा, 4 चेक करेगा, 3 इज लेस देन 4, आई विल सिंपली टेल कि 3 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 4 हो गया। ठीक है, फाइन। 1 के लिए 3 को मैं इस स्टैक में पुश भी कर दूंगा। अब 1 के लिए आया, 1 के लिए मैं सिंपली क्या देखूंगा, उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक, जो कि उसके जस्ट राइट वाले एलिमेंट्स बताता जाएगा मुझे। आई विल सिंपली से कि 3 से छोटा है 1, सो फॉर 1 नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इज 3। ठीक है, नाउ यू विल से कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n कैसे हो रही है। ठीक है, लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है बीच में, क्योंकि सपोज यहां पे 4, यहां पे 1 1 1 1 काफी टाइम होता है। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि ये जो एलिमेंट्स हटा रहे हैं हम, ठीक है, जो एलिमेंट्स हटा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज नहीं करेगा। तो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाई इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n। ध्यान से सुनना, एंड इफ इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, सिंपली जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी कैन रिमूव फ्रॉम दिस स्टैक इज n। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हम किसी भी प्रोसेस में, किसी भी एलिमेंट्स के लिए हम वो जो एलिमेंट्स इस स्टैक से हटाने वाले हैं वो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम n-1 एक्चुअली। ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट्स विच वी आर गोइंग टू रिमूव फ्रॉम दिस स्टैक। ठीक है, तो अब मैं किसी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनके मुझे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट्स निकालने हैं, तो मैं एक लूप तो चलाऊंगा हर एलिमेंट पे जाके। ठीक है, कि मुझे अब इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है, एंड आफ्टर दैट आई विल सिंपली पुट अ व्हाइल लूप जिसमें मैं सिंपली चेक करूंगा हर एलिमेंट के लिए कि मुझे वो सारे एलिमेंट्स निकालने हैं इस व्हाइल लूप के अंदर जो स्टैक से जो AI से छोटे हैं। ठीक है, तो अगर ये जो एलिमेंट्स निकल रहे होंगे वो मैक्सिमम कितने होंगे, O ऑफ n। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लूप है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n, एंड इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी, ये जो लूप है ये n टाइम्स ही चल सकता है, टोटल n टाइम्स चलेगा। ठीक है, टोटल n नंबर ऑफ टाइम्स ही चलेगा, उससे ज्यादा चलेगा ही नहीं। दैट्स व्हाई इस टोटल कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n। ओके, if you still have any doubt you can ask me in comment section. I will explain you again why its complexity is O of n or linear. Okay, now I'm showing you the code for this question and बहुत easy सा कोड है, सिंपली चेक करो। ठीक है, देखो ये मेरे पास 2 एरेज थी, मुझे num2 का पहले तो क्या निकालना है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। मैंने एक स्टैक लिया, मैंने एक वेक्टर लिया जिसमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट पुश करूंगा। बैक साइड ऑफ एरे से गया, स्टैक का साइज अगर 0 है तो आई विल सिंपली पुश दैट। अब इस एलिमेंट के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट -1 है क्योंकि उसके राइट में कोई भी बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है ऑब्वियसली, एंड स्टैक में वो नंबर पुश कर दिया। अदरवाइज इफ स्टैक साइज इज नॉट एम्प्टी आई विल सिंपली डू अ व्हाइल लूप, एंड जब तक स्टैक के टॉप से जो जो एलिमेंट्स छोटे हैं मैं उन सबको पॉप कर दूंगा। ठीक है, अदरवाइज जैसे मुझे एक बड़ा एलिमेंट मिला मैं ब्रेक कर दूंगा, और कहीं पे भी अगर मेरा स्टैक एम्प्टी हो जाता है आई विल अगेन ब्रेक। अब अगर सारे के सारे एलिमेंट्स निकल गए सिंपली, तो उसके राइट में कोई भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं प्रेजेंट। अदरवाइज स्टैक का जो टॉप है दैट विल बी द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ करेंट एलिमेंट, एंड आई विल सिंपली पुट दिस एलिमेंट इन द स्टैक ऑल्सो। एट द एंड मैं वेक्टर को रिवर्स कर रहा हूं, बिकॉज मैंने जो वेक्टर में नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट्स पुश करवाए हैं वो किस ऑर्डर में करवाए हैं, फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द एरे। ठीक है, तो आई हैव सिंपली रिवर्स द वेक्टर। नाउ आई हैव नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फॉर num2 एरे। फिर मैंने एक अनऑर्डर्ड मैप ले लिया, अनऑर्डर्ड मैप में हैश मैप यू कैन से, और हैश मैप में नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ ऑल द num2 एलिमेंट्स पुश करा लिया, एंड एट द एंड मैं num1 वेक्टर में गया। num1 वेक्टर में जिसका जिसका मुझे चाहिए था उसका मैंने हैश मैप से निकाल लिया, एंड एट द एंड यू कैन रिटर्न द वेक्टर फॉर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ num1 सबसेट। ओके, thank you guys for watching this video. If you still have any doubt you can ask me in comment section, and this is an important question, और जो इसकी स्टार्ट की ट्रिक है that is a good trick for linear approach. Okay, and this is the best approach for solving this question. Again, if you haven't checked Newton School yet, just go check their pay after placement program, and you can see also that application for full stack development course is open right now, so apply now if you want to get plays for minimum of 5 lakh CTC. Okay, and if you haven't checked Launchpad initiative, just go check their courses, opt any course, get certificate after completion. And at the end, if you haven't subscribed this YouTube channel,
and if you haven't bookmarked this playlist interview questions, just bookmark this playlist. Thank you guys for watching. Like this video, subscribe this channel.